Dear students, I hope you are getting the chapter completely. Now we were talking about that the author decided to go to abroad for further studies, and it happened there. Now the author was going there to abroad for 5 years. Actually the grandmother, she also went to the railway station, but she did not talk, she did not show any emotion there to the author, but her lips were moving in prayer, her mind was lost in prayer, and her fingers were busy telling the beads of her rosary. Rosary आपको मैंने पहले भी explain किया. Rosary means the string of beads which is used to pray. Now look at here, silently she kissed my forehead. उन्होंने मेरे forehead को kiss किया, and that was the last sign. Perhaps that was the last sign of physical contact between us. But that was not so. Means ऐसा नहीं था that she kissed me, she kissed my forehead, तो वो last imprint होगा. No, that was not so. After 5 years, I came back home, मैं वापिस आया, and was met by her at the railway station. Means she came to receive me. She did not look a day older. जैसे वो पहले दिख रही थी, she was looking like the same. She still had no time for words. अभी भी वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी. Earlier what she was doing, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. She hugged me, and at that time I could hear her reciting her prayers. Means at that same time she was busy telling the beads of her rosary. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. As we already discussed that she used to spend her time with all the sparrows, okay, feeding her sparrows. And now look at here, even on the first day of my arrival, means जब author first day अपने घर वापस पहुँचे after long 5 years, her happiest moments were with her sparrows. अभी भी वो किसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं? स्पैरोज के साथ. whom she fed longer and with frivolous rebukes. फ्रिवलस क्या होता है? नॉट सीरियस मीन्स सिली सी, छोटी सी डांट लगा देते हैं. रिब्यूक मीन्स स्कॉल्ड करना, डांटना. तो अभी भी वो क्या कर रही हैं? शी यूज टू स्पेंड टाइम विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर, जिनको पहले से ही वो फीड करती आ रही हैं. एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स. फ्रिवलस मीन्स नॉट सीरियस रिब्यूक्स. रिब्यूक्स मीन्स डांटना. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. इन द इवनिंग टाइम मीन्स सडनली अ बिग चेंज केम ओवर हर. अब उनके में एक बड़ा सा चेंज दिखाई दिया. At that day, she did not pray. Earlier, she used to spend her time in praying. She used to spin her wheel. Okay, but that day she did not pray. उन्होंने pray नहीं किया. She collected the women of the neighborhood. उन्होंने क्या किया? Actually, she collected the women of the neighborhood. उन्होंने सारी women को collect किया. Got an old drum and started to sing. उन्होंने एक पुराना ड्रम उठाया and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. Actually, जब ड्रम प्ले कर रही थी, what she was singing? For several hours, she thumped the sagging. Sagging क्या होता है? Actually, bend in the middle. बीच वाली साइड से क्या हो जाना? थोड़ा सा बेंड कर जाना, झुक जाना. मीन्स द ड्रम वॉज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन. सैगिंग स्किन्स of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. Now look at here. ड्रम का स्किन कैसा था? सेगिंग स्किन हो चुका था. सेगिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर. एंड ऑफ द डिलिपिएटेड ड्रम. डिलिपिएटेड मीन्स द ओल्ड एंड द ब्रोकन ड्रम. ड्रम की कंडीशन एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट वॉज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन. एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स. मीन्स वट शी वॉज सिंगिंग? शी वॉज सिंगिंग अबाउट द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स. जो सैनिक होते हैं उनको घर आते हैं तो उनकी वेलकम के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है. we had to persuade her to stop to avoid overstraining. persuade means convince. okay, we had to convince her. हमें उन्हें convince करना पड़ता था. किस लिए convince किया हमने उन्हें? her to stop to avoid overstraining. overstrain करना means ज़्यादा थक जाना, टायरिंग हो जाना. तो कंटिन्यू सिंगिंग कर रही थी तो उससे ओवरस्ट्रेन ना हो जाए, थक ना जाए. वी ट्राई टू कन्विंस हर. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. as we have already discussed that on that day she did not pray
ओके उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, कह रहे जब से मैं देख रहा हूँ उन्हें, दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, जितना भी मुझे पता है कि ये फर्स्ट डे था दैट शी डिड नॉट प्रे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वट हैपन टू हर, अब देखो क्या हुआ उनके साथ, शी वॉज टेकन इल, उन्हें बीमार हो गए वो, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि वो माइल्ड फीवर क्या हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मीन्स बट शी वॉज थिंकिंग डिफरेंट थिंग, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, शी हैड ऑलरेडी रियलाइज द फैक्ट दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका एंड क्या है, अब बिल्कुल पास है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of life, she had omitted to pray. हम जान रहे हैं, हमें पता है कि एक दिन पहले ही क्या हुआ, मीन्स नाउ शी वॉज टेलिंग अस दैट हर एंड वॉज नियर, हमें बता रही हैं कि वो क्या है, उनका एंड बिल्कुल पास है। तो वो कहती हैं शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनकी जो लाइफ का बिल्कुल लास्ट चैप्टर था, मीन्स नाउ शी इज गोइंग टू बी डेड, तो वो क्या कह रही हैं, कहती हैं ओनली सिंस अ फ्यू आवर्स बिफोर, कि कुछ घंटे पहले ही, जब उनकी डेथ होने वाली है उससे कुछ टाइम पहले ही, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, नाउ शी हैज़ रियलाइज द फैक्ट एंड वट शी हैड टोल्ड द फैमिली ऑफ द ऑथर दैट हर एंड वॉज नियर, and now she is not in a mood to waste her more time talking to us. We protested, हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, हम अगेंस्ट हुए उस चीज़ के, but she ignored our protest. She laid peacefully in bed praying and telling her beads. वो अभी भी पीसफुली वहाँ लेटी हुई हैं, praying and telling her beads. Means what she was doing, she was busy telling the beads of her rosary. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कि उससे पहले कि हम कुछ उसके बारे में जान पाते, ग्रैंड मदर के बारे में सस्पेक्ट करते, कुछ हमें साइन मिलता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, मीन्स नाउ द ग्रैंड मदर वॉज नो मोर, अब वो हमारे बीच में नहीं थी, एंड वट शी हैज़ वट द ऑथर हैज़ सीन देयर, उन्होंने क्या देखा, दैट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो लिप्स थे वो मूविंग करना बंद कर चुके थे, रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर एंड अ पीसफुल पैलर, पैलर मीन्स येलो स्किन, अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीलापन, जैसे येलो पेल हो जाता है फेस, एक पेलनेस, बट पीसफुली उनके फेस पर एक पीस था और एक पैलर, येलो स्किन हो चुकी थी, कन्वर्ट हो चुका था। एंड वी नो she was dead and we know that she was dead, और हमें रियलाइज हुआ that she was no more. We lifted her off the bed as it is customary, जैसे हमारी कस्टम्स होती हैं, हमने क्या किया, उनको बेड से नीचे उतारा, led her on the ground, उन्हें ग्राउंड पर लेटाया, covered her with a red shroud, shroud क्या होता है, cloth which is used to cover the dead body, उन्होंने हमें उन्हें कवर किया with a red shroud. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मीन्स काफ़ी देर तक हम मॉर्निंग मीन्स रोना, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनको कुछ टाइम अकेला छोड़ा, मीन्स टू मेक ऑल द फ्यूनरल सेरेमनी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्क्रैचर, क्रूड मीन्स नॉट इन अ गुड कंडीशन, सो हम उनके रूम में गए और क्रूड मीन नॉट रिफाइंड, हमने एक स्ट्रेचर देखा, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, हमें अब उनको क्या करना था, फ्यूनरल सेरेमनी, जो डेड सेरेमनी की जाती है डेड बॉडी के लिए, वो हमने सभी करना था। सो वी वेंट टू हर रूम, द सन वॉज सेटिंग, सन सेट हो रहा था, सेट्स हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, and now we had lit her room and veranda also with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, हम halfway में ही courtyard में रुक गए, all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud, thousands of sparrows scattered on the floor. Now look at here, what the important point was there. Actually, when she was covered with red shroud, thousands of sparrows, okay, all over the veranda, in and her room, means जिस रास्ते में जहाँ पर where she lay dead, और वो अभी रेड कहाँ रेड श्राउड में रैप की हुई हैं, thousands of sparrows sat squatted on the floor, thousands of sparrows which she generally used to feed
उनको जो फीड किया करती थी. Thousands of sparrow came there on the floor, but there was no chirping, means no bird was chirping there. They all were silent. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. अब हमें भी काफ़ी दुख फील हो रहा था, रियलाइज़ हो रहा था, बट एट दैट टाइम माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, कि मेरी मदर क्या लेकर आई, उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे ग्रैंड मदर यूज़ करती थी, मीन्स शी कन्वर्टेड ऑल द ब्रेड इनटू क्रम्स, इनटू पीसेस, तो वैसे ही उन्होंने किया. एंड थ्रू इट टू देम, और उनको डाल दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड बिकॉज दे वर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड बाय द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर. सो द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. when we carried my grandmother's corpse off, जैसे ही उन्होंने डेड बॉडी को उठाया, कॉप्स को उठाया, दे फ्लू अवे क्विकली, मीन्स ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे क्विकली, क्वाइटली, चुपचाप, पीसफुली वो वहाँ से चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड देयर, स्वीपर आया और उन्होंने सारे ब्रेड क्रम्स को क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया. मीन्स दिस चैप्टर, द टाइटल ऑफ द स्टोरी, okay, the portrait of a lady is appropriate because the focus is on the grandmother, okay, as you have seen there from the beginning to the end. बिल्कुल लास्ट तक सारा फोकस किस पर किया गया है, ओनली ऑन grandmother. In a true sense हम बता सकते हैं that it is a vivid portrait of the grandmother, and the author gives a detailed account of the life and personality of the person with whom he had a long, and means he was connecting with the grandmother so much. So by giving her portrait, okay, graphic portrait, he seems to pay his tribute to his old friend, okay, you can say, because they had become intimate friends also. So this chapter, the portrait of a lady, is tribute to Khushwant Singh's, the author's grandmother. Okay, thank you.